السلام علیکم ناظرین۔ الحمدللہ، یہ تو بڑا مبارک خواب ہے۔ شیخ عز الدین اپنی جگہ جھوم اٹھے۔ حاضرین محفل میں بیبرس کی بات پر تجسس سا پیدا ہو گیا تھا۔ وہ منتظر تھے کہ شیخ عز الدین کیا تعبیر بتائیں گے۔ حضرت ہمیں بھی کچھ بتائیے کہ یہ سب کیا ہے۔ حاضرین میں سے ایک شخص بےتابی سے بول اٹھا۔ دوسروں کے چہرے بھی تائیدی نگاہوں سے شیخ عز الدین کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ مزید کچھ بتائیں گے کیا؟ بیبرس آہستگی سے بولا۔ شیخ عز الدین نے نفی میں گردن ہلائی تو حاضرین کی امیدوں پر روس پڑ گئی۔ شیخ عز الدین نے حاضرین مجلس کی توجہ دوسری جانب مبذول کرتے ہوئے دوسری بات چھیڑ دی اور ایسی عمدگی سے سلسلہ کلام جوڑا کہ توجہ بیبرس کے خواب سے ہٹ گئی۔ تہجد سے کچھ پہلے اس محفل کا اختتام ہوا اور سب لوگ اٹھ کر گھروں کی جانب لوٹنے لگے۔ بیبرس نے آگے بڑھ کر شیخ عز الدین سے مصافحہ کیا تو ان کی سرگوشی نما آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ جس شخص نے تمہیں وہ چادر دی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور وہ چادر کچھ اور نہیں خلافت الہیہ ہے جس کی حفاظت کے لیے تمہیں منتخب کر لیا گیا ہے۔ یہ بات اپنے تک محدود رکھنا، وقت آنے پر خود ہی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ خلافت کی حفاظت کی ذمہ داری تم پر ڈال دی جائے گی۔ بیبرس چونک کر ان کی صورت دیکھنے لگا۔ انہوں نے اشارہ کرتے ہوئے اسے رخصت کر دیا۔ بیبرس کچھ اور پوچھنا چاہ رہا تھا مگر شیخ عز الدین اس کے مزید ٹھہرنے پر راضی نہیں تھے۔ وہ بے چارگی کے عالم میں وہاں سے نکل آیا۔ گھر تک پہنچنے تک اس کے ذہن میں شیخ عز الدین کے فکرے گونجتے رہے۔ اسے کسی قدر خوشی بھی تھی کہ اس کی جان منہ سے خلافت کے کام آ جائے تو اس کے لیے اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے، مگر پریشانی اس امر کی تھی کہ ناموس خلافت پر ایسی کون سی مصیبت ٹوٹنے والی ہے جس سے اس کا ایک حصہ ہی گم ہو جائے گا۔ وہ خیالات کے بھنور میں پھنس کر جانے کیا کیا سوچتا رہا اور بالآخر نیند کے شدید غلبے نے اس کی سب پریشانیوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا۔ ناظرین، متی الدین بے حد چوکنے انداز میں بیٹھا ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ کوئی نہ کوئی ضرور اس کے قریب موجود تھا جو اسے بخوبی دیکھ رہا تھا اور اپنی موجودگی کے منکشف ہو جانے پر دبے کر بیٹھ گیا تھا۔ بالآخر اس سے رہا نہ گیا تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور زوردار آواز میں بولا، تم جو کوئی بھی ہو اندھیرے سے نکل کر میرے سامنے آ جاؤ، مجھے تمہاری موجودگی کی خبر ہو گئی ہے، یہ نہ ہو کہ میری تلوار سے تمہارا خون ناحق بہہ جائے۔ متی الدین خاموشی سے قرب و جوار میں دیکھنے لگا۔ کچھ دیر تک یوں ہی سناٹا چھایا رہا، پھر کسی کی حرکت کی آواز سنائی دی۔ وہ آواز کی سمت میں گھوم گیا۔ اندھیرے میں اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اچانک کسی کے چلنے کی چانپ سنائی دی۔ متی الدین کو یہ اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ وہ جو کوئی بھی تھا اکیلا نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر بعد دو افراد تاریکی میں سے نکل کر اس کے سامنے آ گئے۔ ان کے چہرے ڈھاٹوں میں چھپے ہوئے تھے، لمبے لمبے لبادوں میں انہوں نے خود کو لپیٹا ہوا تھا۔ اسی اثنا میں فناجو خان بھی وہاں آ پہنچا۔ اسے دور سے ہی متی الدین کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ کسی کی موجودگی یا کسی جانور کے حملے کے خیال میں تیز قدموں سے آیا تھا۔ خیمے کے سامنے دو افراد کو موجود پا کر وہ ٹوٹے گیا۔ متی الدین، کون ہیں یہ لوگ؟ وہ جلدی سے بولتا ہوا آگے بڑھا۔ معلوم نہیں، مجھے تو ان کی موجودگی کا احساس کافی دیر پہلے ہو چکا تھا۔ کون ہو تم لوگ؟ فناجو خان تیز آواز سے ان کی جانب متوجہ ہوا۔ مسافر، ہم راستے سے بھٹک گئے ہیں، ایک شخص بولا۔ کہاں سے آئے ہو اور کدھر جانے کا ارادہ ہے؟ متی الدین نے دریافت کیا۔ ہمیں منگولوں کی سرزمین سے کہیں دور جانا ہے، وہ شخص بولا۔ کیا مطلب؟ فناجو خان اس کے جواب پر چونک گیا۔ صاف صاف بتاؤ، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، ہم صرف خود کو نقصان پہنچانے والوں پر حملہ کرتے ہیں۔ متی الدین نے اسے تسلی دی۔ تم شاید مسلمان ہو، وہ شخص بولا۔ متی الدین نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہم تم پر بھروسہ کر سکتے ہیں، میرا نام شکنان ہے اور ہمارا تعلق قبیلہ سرغر سے ہے۔ متی الدین کو اس کی بات پر حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ میرا تعلق کسی طرح سے بھی قبیلہ سرغر سے نہیں ہے، میں زرغامی قبیلے سے ہوں۔ تم جھجکو مت، میں تمہاری ہر آفت سے حفاظت کروں گا۔ فناجو خان نے اپنا تعارف کرایا۔ دراصل میں اور یہ اپنے قبیلے سے فرار ہو کر جائے پناہ کی تلاش میں ہیں۔ سرخ غر کے لوگ ہماری تلاش میں ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں۔ یہ کون ہے؟ اور تم لوگ اپنے چہرے کھول دو،
मुझे पोशीदा चीज़ों से वहशत होती है। मतीउद्दीन ने शगुफ्ता लहजे में कहा। शकरान ने अपने चेहरे का ढाटा खोल दिया था। वो चेहरे से मंगोल दिखाई नहीं दे रहा था। इसी बात पर मतीउद्दीन को हैरत हुई, जबकि उसके साथ दूसरा फर्द चेहरा खोलने से हिचकिचा रहा था। शकरान ने उसे इशारा किया तो उसने अपने चेहरे से ढाटा हटा दिया। फैनाजो खान उसे देखकर कई कदम पीछे हट गया था। वो कोई औरत थी। ये कौन है और तुम्हारी क्या लगती है? मतीउद्दीन मामले को किसी हद तक समझ चुका था। ये मेरे मंगोल आका की बेटी है। इसने मुझे इस जाने मैल किया कि हम कहीं दूर निकल जाएं। यार मर्दों वाली बात करो, क्या औरतों की तरह सफाइयाँ पेश कर रहे हो? सीधी तरह कहो कि मोहब्बत के मारे हो और खुदा की ज़मीन पर अपनी जन्नत बसाने के दर पे हो। मतीउद्दीन ने हंसते हुए कहा, ये तुम्हारी कबील के लोग लगते हैं। फैनाजो खान ने मतीउद्दीन पर भभती कसी। मतीउद्दीन मसनूई गुस्से से उसे घूरने लगा। तुम हमारे साथ यहाँ आराम करो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। सुर्ख घर के बाप भी तुम्हें हाथ नहीं लगा सकते। फैनाजो खान ने ठोस लहजे में कहा। वो दोनों शायद शदीद भूखे थे, इसलिए वो औरत रह न पाई और उसने अपनी ज़रूरत का इजहार कर डाला। मतीउद्दीन ने उन दोनों के लिए खाना निकाला। इसका मतलब यह है कि सुर्ख घर के लोग यहीं घूम रहे हैं, हमें चौकन्ना रहना होगा। मतीउद्दीन ने फैनाजो खान को मुखातिब किया। वो दोनों इस बात पर उसे देखने लगे। फैनाजो खान ने हाथ के इशारे से उन्हें इत्मीनान दिलाया। दो दो हाथ तो करना ही थे, कल नहीं तो आज ही सही। फैनाजो खान ने जवाब दिया। थोड़ी देर में दोनों खाना खा चुके थे। मतीउद्दीन ने अपनी छागल उनकी जानिब बढ़ाई। शकरान, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूँगा। मुझे यकीन है कि तुम सच सच बताओगे। हमने तुम पर मुकम्मल भरोसा करते हुए अपने बारे में सही बताया है। वो तजब्जुब का शिकार हो गया। मुझे तुम्हारे बारे में नहीं, सुर्ख घर के बारे में कुछ पूछना है। मतीउद्दीन ने कहा। मैं कोशिश करूँगा कि सही बताऊँ। कबीला सुर्ख घर का कोनई खान से क्या ताल्लुक़ है? मतीउद्दीन ने सवाल किया। उसे कोई तवक्को नहीं थी कि उसका जवाब उसे मिल पाएगा। कौन कोनई खान? शकरान की आंखों में हैरत नमूदार हुई। कबीला सुर्ख घर में कोई ऐसा शख्स नहीं जिसका नाम कोनई खान हो। मैं तुम्हें सही समझा नहीं सका। कोनई खान कबीला सुर्ख घर का नहीं है, बल्कि वो सराय में रहता है। उसकी कबीले वालों से कोई रिश्तेदारी है जिसके बारे में मैं नहीं जानता। तुम कहीं गुलवकूज के बाप के बारे में तो नहीं पूछ रहे, जो कत्ल हो गया था? औरत जोशीले अंदाज में यकदम बोल पड़ी। मतीउद्दीन इस गैर मुतवक्के बात पर बुरी तरह उछला। उसकी आंखें हैरत से खुल पड़ी थीं। हाँ हाँ वही है, वो चीखता हुआ बोला, जैसे उसे होश आ गया हो। लेकिन तुम गुलवकूज को कैसे जानती हो? वो हमारे साथ ही वहाँ से निकली थी, मगर वो अचानक खामोश हो गई। शकनान उसकी जानिब तेज निगाहों से देखने लगा। शायद उसे उसकी बेजा मदाखलत पसंद नहीं आई थी। हाँ कहो, तुम रुक क्यों गई? मतीउद्दीन की वारफर्दगी देखने के लायक थी। फैनाजो खान इस नई सूरत से खुद परेशान दिखाई दे रहा था। उसका जहन पूरी तरह मुस्तैद था। वो इन लोगों की अचानक आमद और फिर गुलवकूज से ताल्लुक़ पर शुबह और शक का शिकार हो गया था। उसकी छठी हिस्स बार बार किसी खतरे से आगाह कर रही थी। असल बात यह है कि वो हमारे साथ तो ज़रूर वहाँ से आई, मगर वो यहाँ किसी गार में हमसे गुम हो गई। वो बात जोड़ता हुआ बोला। गुम हो गई? क्या मतलब? मतीउद्दीन के माथे पर बल पड़ गए। मैं और गहनान हम दोनों सुबह होने पर उस गार से बाहर निकले जहाँ हम तीनों रात भर ठहरे थे। हम दोनों वहाँ से नज़दीकी चश्मे तक पहुँचे और वहाँ हाथ मुँह धोया। मैंने कुछ जंगली फल तोड़े और हम दोनों वापस गार की जानिब लौटे तो वहाँ गार मौजूद नहीं था। मैं ये देखकर सटपिटा गया, क्योंकि गुलवकूज को ही रास्तों का इल्म था। मैं इस बारे में कुछ जानता ही नहीं था। नौजवान, तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? कैसी ओल फोल बक रहे हो? फैनाजो खान ने सख्त लहजे में कहा। मैं गहनानम की कसम खा कर कह रहा हूँ कि ऐसा ही हुआ है। मैं समझा कि शायद हम रास्ता भूल गए हैं, लिहाजा हम दोनों दोबारा उस चश्मे पर पहुँचे और फिर दोबारा उसी रास्ते से वापस वहाँ पहुँचे, मगर वहाँ गार नहीं दिखाई दिया। उसका लहजा उसकी सच्चाई की चुगली खा रहा था। ये वाक़या कब रूनुमा हुआ? मतीउद्दीन ने दरियाफ्त किया। ये आज सुबह की बात है। उस वक्त से हम इस जंगल में भटक रहे हैं। हमको कुछ सुझाई नहीं देता कि किस तरफ निकलें कि यह जंगल ख़त्म हो जाए। गहनानम ने जवाब दिया। उस चश्मे को पहचानते हो जहाँ तुम लोग गए थे?
फनाजो खान ने अचानक सवाल किया। हाँ, उसे देख कर पहचान लूँगा। ठीक है, तुम आराम करो, इस बारे में कल सुबह बात होगी, फनाजो खान ने कहा। मतीउद्दीन शायद कुछ और भी पूछना चाह रहा था, मगर उसने इशारे से मना कर दिया। वो दोनों खेमे से बाहर निकले। फनाजो खान ने एक दूसरा खेमा निकाला और उसे लगाने में जुट गया। मतीउद्दीन उसका मकसद समझ गया था। वो उसका हाथ बटाने लगा। वो काम में मसरूफ ज़रूर था, मगर उसका दिमाग उन लोगों की बातों में उलझा हुआ था। फनाजो खान ने खेमा लगाने के बाद जब उसे तन्हा आराम करने का कहा, तो मतीउद्दीन ने चौंक कर इसकी वजह दरियाफ्त की। मैं रात को इन लोगों का ख्याल रखूंगा, क्योंकि मुझे खदशा है कि वो फरार हो जाएंगे। सुबह होने पर मैं इन्हें एक नई चीज़ दिखाऊंगा, तो सब सच्चाई सामने आ जाएगी। तुम बेफिक्र होकर सो जाओ। समझो, कल सुबह गुलवकोज मिल जाएगी। अगर वो उनके साथ वाकई आई है तो। मतीउद्दीन कुछ समझ नहीं सका कि वो क्या करना चाहता है, इसलिए खामोश रहा। अलबत्ता खेमे के बिस्तर पर लेटने के बाद उसे मालूम हुआ कि कांटों का बिस्तर किसे कहते हैं। नाजरीन, बरकई खान तकरीब करोलतई से अपने भाई और दीगर रिश्तेदारों के हमरा वापस सराय लौट आया। सराय का पुराना नाम मतल था, जो कि दरियाए वलगा के किनारे पर आबाद था। चंगेज़ खान के बड़े बेटे तोशी खान को यह जगह इस कदर भई कि उसने उसे अपनी सल्तनत का दारुल खिलाफा करार दे दिया। उसके बाद से अब तक उसे उर्दू ज़रूरी में मरकज़ी हैसियत हासिल थी। बरकई खान को जिस खदशे का अंदेशा लाहिक था, वो कुदरत ने ऐसे मिटा डाला था जैसे उसका वजूद ही ना हो। यसा कि यह तरमीम इसके मकासद के लिए बड़ी अहमियत की हामिल थी। उसने सराय पहुंचकर सबसे पहले हराम और ख़ास को इस तरमीम से आगाह किया और अपने मुसलमान हो जाने का बरमला इजहार कर दिया। मंगोलों के एक बड़े तबके ने, जो कि इस्लाम की जानिब रुग़बत रखते थे, मौत का खौफ दूर होते ही इस्लाम में शमूलियत का ऐलान कर दिया। जो लोग खुफिया मुसलमान हो चुके थे, उन्होंने भी सुख का सांस लिया। बातू खान तक मुसलसल ऐसी खबरें पहुंच रही थीं। वो इस नई रोश पर खुद को बेबस महसूस कर रहा था। उसे अब पछतावा हो रहा था कि उसने क्यों यह साख में तरमीम की तजवीज़ पेश की थी। उसने गम गलत करने की खातिर खुद को शराब में डबो दिया। बातू खान को करोलतई में अपनी सबकी का शदीद दुख था। वो अक्सर नशे के आलम में बरकई खान को कोसता रहता कि काश वो उसका भाई ना होता। दरियाए वलगा के किनारे बरकई खान का महल मुसलमानों की सरगर्मियों का मरकज़ बन गया। बरकई खान ने मतीउद्दीन की जानिब से दौड़ाया। उसकी गैर मौजूदगी की खबर पाकर वो लम्हा भर को परेशान हुआ, मगर दूसरी मसरूफियत ने उसे उस जानिब से गाफिल कर दिया। जो जो दिन गुजरते जा रहे थे, उसकी मकबूलियत में इजाफा होता चला गया। ज़री खेल मंगोलों में इस्लाम की जानिब रुग़बत बढ़ने लगी। बरकई खान ने अपने कुछ कासिद दरबार खिलाफत में भी तहफ़ के साथ रवाना किए, ताकि सल्तनत खरजम के सीने में लगाए गए ज़ख्मों का किसी हद तक मदावा किया जा सके। एक दिन वह अपने महल में मौजूद था कि उसके भाई बातू खान का बड़ा बेटा सरताक वहाँ आ गया। भतीजे को देखकर बरकई खान बड़ी मोहब्बत से पेश आया। सरताक की उम्र 21 बरस से ऊपर थी। वो बड़ा मगरूर और जालिम तबीयत का मालिक था। उसने कई लोगों को नाहक कत्ल किया और शरफा की इज़्ज़तें उछाली थीं। उसका दबदबा ऐसा था कि किसी में इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो उसकी शिकायत बातू खान से करता। यही चीज़ उसका मिजाज बिगड़ने के लिए काफ़ी थी। ये अलग बात थी कि बातू खान तक उसकी हरकत की पूरी खबर पहुंच जाया करती और वो पोशीदा अंदाज में मरहा से शरफा की दिलजोई करता रहता। उसे खौफ था कि अगर उसके बाद सरताक बादशाह बना तो 100% मुल्क में बगावत के आसार पैदा हो जाएंगे। उसने सरताक को कई बार होशमंदी और मामला फहमी की सलाह दी, मगर वो बदमस्ती के आलम में ऐसा सरशार था कि उसे अपने बाप की बात सुनना तो गवारा थी, मगर उस पर अमल करना उसकी लुगत में नहीं था। बातू खान उसके चाल चलन का शिकवा अक्सर बरकई खान से किया करता कि वो ही उसे राह रास्त की तरगीब दे, क्योंकि आने वाले वक्त में इन्हीं लोगों के हाथ बागडोर सौंपी जाएगी। अगर उसकी रोश ऐसी रही तो उर्दू ज़री तोशी खान की औलाद के हाथों से निकल जाएगा। बरकई खान ने किसी हद तक उसे समझाने बुझाने की कोशिश की, तो उसने बरकई खान से ही कन्नी कतराना शुरू कर दी। वो कोशिश करता कि उसका सामना चचा से ना हो जाए। सरताक की आमद बरकई खान के लिए गैर मुतवक्किय थी, क्योंकि वो एक अरसे के बाद उसकी सूरत देख रहा था। सरताक खामोशी से उसके सामने बैठ गया। उसके तेवर कुछ अच्छे मालूम नहीं होते थे। कहो सरताक, कैसे हो और कहाँ गायब हो गए थे? बड़े अरसे के बाद चचा तुम्हें याद आया। चचा, सरताक उखड़े हुए लहजे में बोला।
तुमने क्या खेल रचा रखा है कि मेरे बाप का चेहरा गम व अंधों की तस्वीर बनकर रह गया है? क्या हुआ? बरकई खान उसकी बात समझ नहीं सका। सरताक उसकी सादगी पर होंठ काटने लगा। तुम समझते हो कि जावदानी आसमान के तिंगरी को छोड़कर इन मलहोनों के साथ सुख चैन से रह पाओगे? ऐसा नहीं होगा। यह तुम्हारी भूल है। मैंने रोशनी को पा लिया है और यकीन महकम रखता हूँ कि मुझे कुछ नहीं होगा। मेरी ज़िंदगी वैसे ही गुजरेगी जैसे पहले गुजर रही थी। अलबत्ता मेरी अकबत खुशगवार होगी। बरकई खान ने जवाब दिया। तुम कुछ नहीं समझते चचा, तुम्हारा दिमाग सठिया गया है। मैं तुम्हें आखिरी बार तंबीह कर रहा हूँ कि इस बदमज़गी को फैलाने से बाज आ जाओ, वरना तुम्हारे खून में मेरे हाथ तर हो जाएंगे। सरताक तेज आवाज़ में बोला। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। लड़के, अभी तुम्हारे दूध के दांत भी नहीं टूटे। ये गीदड़ भभकियाँ किसी और को देना। याद रखो, मैं भी तुम्हारा चचा हूँ। बरकई खान उसकी बदतमीजी पर भड़क गया था। चचा, कुछ अरसे की बात है, खूब मौज कर लो, फिर मैं देखूंगा कि गीदड़ भभकियाँ किसकी निकलेंगी। सरताक पाँव पटक कर उठ खड़ा हुआ। मैं अपने अल्लाह से दुआ करूंगा कि वो मेरे हाथ तुम्हारे खून में ना रंगे और तुम्हें मेरी राह में लाकर खड़ा ना करे। बरकई खान ने दांत पीस कर जवाब दिया। मगर मैं जावदानी आसमान के तिंगरी से ज़रूर ये दुआ करूंगा कि मुझे वो ऐसा मौका ज़रूर दे कि मैं तुम्हें सबक सिखा सकूं और वापस अपने सबका रोश को इख्तियार करने पर मजबूर कर दूं। सरताक तंजिया अंदाज में बोला। बरकई खान चुप रहा। सरताक कुछ देर उसे घूरता रहा, फिर नाक भों चढ़ाता हुआ वापस लौट गया। बरकई खान को उसके रवैये पर शदीद रंज हुआ था। वह बातो खान के सब लड़कों और अपने भाइयों से बेहद मोहब्बत करता था। उसे हरगिज़ तवक्को नहीं थी कि सरताक बदतमीजी की तमाम हदूद पार कर जाएगा। उसने तहम्मुल का दामन पकड़े रखा। वो नहीं चाहता था कि उर्दू ज़री में कोई बिगाड़ पैदा हो या बदमज़गी फैले। यही वो दिन था जिसने उसकी तमाम तर तवज्जो सल्तनत के अमूर की जानब मोड़ दी। वो बाकायदा तौर पर रियासी मामलात में दिलचस्पी लेने लगा। नाजरीन, शंग गुलवकोज का मामूजात भाई था। वो ज़्यादातर शिकार में मशगूल रहा करता। गुलवकोज को कबीला सुरगर में लाने के बाद वो हस्ब आदत फिर शिकार पर निकल खड़ा हुआ। जब घर की याद ने सताया तो कबीले में लौट आया। कबीले में पहुंचने के बाद उसे गुलवकोज का ख्याल आया। गुलवकोज के बारे में उसके दिल के किसी गोशे में हमदर्दी मौजूद थी। उसे मालूम था कि वह मंकाना की तहवील में है, जो उसे अपने दामाद को नई खान के कत्ल के जुर्म में कोई खौफनाक सज़ा देना चाहता है। गुलवकोज का असल जुर्म क्या था, इस बारे में शंगला इल्म था। उसने कबीले में पहुंचते ही गुलवकोज की खैरियत मालूम की तो उसे मालूम हुआ कि वह 2 दिन पहले कबीले की एक दूसरी लड़की गहना नमक और एक गुलाम शकनान के साथ फरार हो गई है। ये उसके लिए हैरत की बात थी कि कबीला सुरगर में से 3 कमज़ोर अफराद अचानक फरार हो जाएं और कबीले वालों में से किसी को कुछ मालूम ही ना हो सके। वो अच्छी तरह जानता था कि फरार के मंसूबे अचानक नहीं बनते। इनके पीछे कई दिन की सोचो विचार और किसी न किसी की मदद ज़रूर शामिल होती है। वो इसी मामले पर बात करने की गर्ज से मंकाना के पास पहुंचा। मंकाना ने अपने पोते को देखा तो उसका चेहरा दमक उठा। दादा, शंग बोला, ये मैं गुलवकोज के बारे में क्या सुन रहा हूँ। उसकी अकल में खलल वाक़ हो गया था, इसलिए उसने तिबी मौत की बजाय हादसाती मौत को अपने लिए चुन लिया। तुम उसकी फिक्र न करो, वो अपने अंजाम तक पहुँच गई है। मेरी गिरफ्त से कोई इतनी आसानी से फरार नहीं हो सकता। तो क्या गुलवकोज को आपने हलाक करवा दिया है? वो आपकी नवासी थी। शंग चौंक उठा। बेफिक्र रहो, वो अभी हलाक नहीं हुई, बल्कि सिर्फ मौत से नबरदज़मा है। ये उसकी आखिरी सज़ा थी। मैंने समझाने बुझाने की बड़ी कोशिश की कि वो तुमसे शादी करके हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करे, मगर उस बदतमीज़ लड़की के दिमाग पर किसी मुसलमान का भूत सवार था। ऐसी बगावत कम अज़ कम मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मंकाना की बात सुनकर शंग के चेहरे पर खौफ के आसार नमूदार होने लगे। सही बताइए कि आपने उसके साथ क्या किया है? तुम्हारा चेहरा क्यों मुतगय्यर हो रहा है? गुलवकोज किसी भी हमदर्दी के लायक नहीं थी। मंकाना ने उसकी सूरत देखते हुए कहा। दादा, शंग बेचैनी से बोला, आप मेरी फिक्र ना कीजिए, मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आपने उसके साथ क्या किया है। मैंने उसे आखिरी रस्म की सज़ा दे दी है और वो अपनी सज़ा भुगत रही है। मुझे उम्मीद है कि आज रात के बाद वो इस दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत हो जाएगी। शंग अपनी जगह से उछल पड़ा।
یہ آپ نے کیا ظلم کیا؟ گل وکوز اگر آپ سے نہیں سمجھ پئی تھی اب مجھے کہہ دیتے، میں اسے سمجھا بجھا کر راز پر لے آتا، ہمارا اس سے خونی رشتہ تھا۔ شنگ کے چہرے پر گہرا تعصب پھیل گیا۔ منکانا اس کی متغیر حالت پر پریشان تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی بات کی کیسے وضاحت کرے کہ شنگ مطمئن ہو جائے، لہٰذا وہ خاموش رہا۔ کچھ توقف کے بعد شنگ دوبارہ بولا، آپ نے اسے کہاں بند کیا ہے؟ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ منکانا نے الٹا سوال پوچھ لیا۔ شنگ کا چہرہ بالکل سپاٹ دکھائی دے رہا تھا۔ میں اسے وہاں سے واپس لانے کی کوشش کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ وہ میری بات مان جائے گی۔ یہ تمہاری خوش فہمی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ میں نے اچھی طرح سوچ کر یہ فیصلہ کیا ہے۔ اگر مجھے اس کے فیصلے میں لچک دکھائی دیتی تو میں بھی اتنا بڑا قدم نہ اٹھاتا۔ یہ سب اب مجھ پر چھوڑ دیجیے۔ اگر میں اسے سرائے سے یہاں تک لا سکتا ہوں تو اس کے خیالات کا دھارا بھی موڑ سکتا ہوں۔ شنگ کے لہجے میں پختہ عزم کی جھلک دکھائی دی۔ شنگ میرے بچے، تمہیں ابھی ایسی باتوں کا تجربہ نہیں ہے۔ میں بخوبی جانتا ہوں کہ عشق و محبت کا بھوت کیا ہوتا ہے۔ جن پر یہ بھوت سوار ہو جاتا ہے وہ خونی رشتوں کو بھی ٹھوکر پر رکھ لیتے ہیں۔ سب مجھ پر چھوڑ دیجیے۔ میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ آپ صرف مجھے اس جگہ کے بارے میں آگاہ کر دیجیے، باقی سب مجھ پر چھوڑ دیجیے۔ پتہ تو میں تمہیں بتا ہی دیتا ہوں، مگر مجھے امید نہیں کہ تم اسے زندہ پا سکو گے۔ منکانا نے اپنا خدشہ ظاہر کیا اور پھر وہ اسے اس جگہ کے بارے میں بتانے لگا جہاں اس نے گل وکوز کو بند کر دیا تھا۔ شنگ منکانا سے تمام تفصیلات معلوم کرنے کے بعد اسی رات کوہ سرخ غر کی جانب روانہ ہو گیا۔ اسے توقع تھی کہ وہ ہر حال میں گل وکوز کو بچا لینے میں کامیاب ہو جائے گا، البتہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک مبہم سا خدشہ بھی اس کے ذہن کے پردوں پر دستک دے رہا تھا۔ ناظرین، دوسری صبح فناجو خان متی الدین کی صورت دیکھ کر بخوبی سمجھ گیا تھا کہ وہ رات بھر صحیح طریقے سے سو نہیں پایا ہے۔ اس نے زیر لب بڑبڑاتے ہوئے عشق کی علت کو اچھی طرح نوازا تھا۔ یہ اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ زرگامی قبیلے کے کئی نوجوان اس کے سامنے عشق کی بدولت ایسی حرکات کے مرتکب ہوتے رہے تھے کہ دیکھ کر ہنسی چھوٹ جاتی تھی۔ اس نے متی الدین کو منہ ہاتھ دھو لینے کا مشورہ دیا تو متی الدین اس کی جانب خونخوار نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ فناجو خان نے اس لمحے اس سے الجھنا مناسب نہیں سمجھا اور دوسرے خیمے کی جانب بڑھ گیا جہاں گہنانم اور شکنان مقیم تھے۔ خیمے میں داخل ہوتے ہی فناجو خان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئیں کیونکہ خیمہ بالکل خالی تھا۔ وہ ہونکوں کی مانند خیمے کے عقب میں لگائی گئی نقب کو دیکھ رہا تھا جو اس کی تمام رات کی نگرانی کا منہ چڑھا رہی تھی۔